Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to International Islamic University Islamabad School's Sahiwal Campus online lectures. This is the lecture for English grade 5 and we are going to start the unit number 14 from our book, and this unit is synopsis of a play, and the name of this play is The Class Play. Okay, in this lecture we are going to begin this unit, so we will cover reading and explanation from the content of this lesson. I will give you the meanings of difficult words. I will read the lesson for you. You people will read with me, and I will elaborate the text written here. So, this is lecture number 1 from this unit. Okay, dear students, before we begin with the reading, just make sure that you have your English students book, your notebook and your complete stationery with you. First of all, let's discuss that what are we going to learn in this lesson. It is a synopsis of a play. Synopsis means a brief summary of something. For example, आपके पास एक पूरी स्टोरी है, एक पूरी बुक है जिसका अगर आप 2 to 3 पेजेस आप उसकी समरी राइट डाउन कर देते तो इस टाइप की जो रिटन टेक्स्ट होता है उसको हम कहते हैं सिनॉप्सिस. सो दिस इज़ अ सिनॉप्सिस ऑफ अ प्ले. इसका मतलब ये है कि कोई प्ले है, कोई ड्रामाटाइजेशन है जिसका ये सिनॉप्सिस लिखा गया है कि इसमें ओवरऑल क्या हो रहा है. इसमें थ्रू आउट द सीन जो थ्रू आउट कंप्लीट सीन्स नहीं होते, कंप्लीट डायलॉग्स नहीं होते, सीन का जो कोई सेटिंग डिस्क्राइब नहीं की हुई होती, सिर्फ ये बताया होता है कि इस सीन में क्या होता है, इस सीन में क्या होता है. जस्ट दिस टाइप ऑफ कंटेंट इज कॉल्ड अ सिनॉप्सिस ऑफ अ प्ले. And in this lesson, the class play, Mrs. Rubina's class students put on a play. They dramatized a story from Tales from the Arabian Nights and work in groups. They rehearse their play and their mothers and teachers help them with costumes. Dear students, costumes means dress up, their dresses. Some students prepare a program which included a synopsis of their play. They will perform their play at the end of the term. मिसेस रुबीना कोई टीचर हैं, उनकी क्लास के स्टूडेंट्स ने एक ड्रामा किसी स्टोरी को ड्रामा के फॉर्म में प्रिपेयर किया है प्रेजेंट करने के लिए, और ये कब प्रेजेंट करने वाले हैं? एट द एंड ऑफ द टर्म. अब इस ड्रामा में ओवरऑल होने क्या जा रहा है इसका एक सिनॉप्सिस लिखा गया है जो कि आपके इस लेसन में शामिल है. And the name of this play is The Boy Judge. The name of actual this story is The Boy Judge. So open your English students book, page number 90, where this lesson begins. Write down date and day on the top of this page. I will give you the meanings of difficult words and you will write down those word meanings in your notebook. So please open your English classwork notebook and prepare your classwork page by writing date and day on the top of the page. Topic is synopsis of a play and subtopic is the class play. Dear students, when you will be doing your writing work, you will pause the video and do your work peacefully and then you will replay the video. Prepare your index properly. Okay, I am going to read this lesson for you. You will read it with me. Just put your finger on the lines जहाँ पे मैं रीडिंग कर रही हूँगी. आप अपनी फिंगर वहाँ पे मूव करेंगे और मेरे साथ साथ रीडिंग करेंगे. सपोज़ आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को रिवाइंड करेंगे और गौर से सुनेंगे. So open your classwork page that you have prepared for today's classwork. Draw a line in the middle of the page. First section is for words and the other is for meanings. I am going to start the reading. The pupils in Mrs. Rubina's class are putting on a play. Here pupils means students. They dramatized a story from the Tale from the Arabian Nights. ये dear students tales कहते हैं ट्रेडिशनल स्टोरीज़ को, जो कि कोई ट्रेडिशनल स्टोरीज़ होती हैं और लोग एक दूसरे को सुनाते हैं और फिर आगे वाले लोग एक दूसरे को सुनाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ये कन्वेंशनली किंग्स जो होते थे वो अपने उनके महल में उनके साथ कोई ना कोई ऐसा उनका सर्वेंट होता था जो उनको डेली कोई ना कोई
स्टोरी सुनाता था, वो वाली स्टोरीज़ लिख ली गई और उनको ट्रेडिशनल टेल्स के नाम से हम जानते हैं. दिस story that is dramatized by Mrs. Rubina's class students is taken from the tales from Arabian Nights. और इस Arabian Nights tales के बारे में मशहूर है कि ये उन स्टोरीज़ की कलेक्शन है जो कि प्रिंसेस शहरज़ादे उस टाइम के किसी किंग को सुनाती होती थी, और किंग रोज़ उन्हें थ्रेटन करता था कि आज मैं तुम्हें आई विल किल यू, आई विल मर्डर यू इफ़ यू डोंट टेल मी अ स्टोरी. तो इसलिए प्रिंसेस शहरज़ादे डेली अपने बादशाह को एक स्टोरी सुनाती होती थी, और हर दिन बादशाह से कहता था कि अगर तुम मुझे स्टोरी नहीं सुनाओगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा. और डेली वो एक न्यू स्टोरी सुनाती थी, और इन स्टोरीज़ की एक कलेक्शन बन गई जिसे टेल्स फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स कहा गया. सो दिस स्टोरी इज़ फ्रॉम टेल्स फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स. दे वर्कड इन ग्रुप टू write the script. Script means the written form of the play. They rehearsed means practiced. They rehearsed their play for several weeks and their mothers and some of the teachers helped them with the costumes. Costumes means, I already have told you, costumes means dresses. They will perform their play to their parents and to the other classes at the end of the term. So I am going to read the synopsis. Scene 1. Ali left his jar of gold with Hussein. When he returned after 7 years, the gold was gone. It took the intelligence of the young boy to find the truth. इन 2 लाइन्स में पूरे के पूरे प्ले का एक छोटी सी झलक दिखाई है कि इसमें एक्चुअली होता क्या है. 2 फ्रेंड्स हैं, हुसैन एंड अली. अली ने अपना गोल्ड का जार हुसैन को दिया है और कहीं चले जाते हैं, कहीं अपने काम से. 7 ईयर्स के बाद जब वो वापस आते हैं और अली से कहते हैं कि मेरा गोल्ड का जार दो, तो अली से कहते हैं कि कौन सा गोल्ड का जार, आई डोंट नो वेयर इज़ इट. अब उन दोनों के दरमियान इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कौन करता है? एक इंटेलिजेंट यंग बॉय हु फाउंड द ट्रुथ. व्हाट एक्चुअली हैपेंड we are going to read on page number 91. So please come to the page number 91 where scene 2 is written, and let's see that what happened in scene 2. Dear students, on your screen you can see the words meanings. You are required to write down these words and meanings in your classwork notebook. Make sure that you are writing them neatly and properly. Okay, come to reading. Scene 2. Ali had a cake shop in the city of Baghdad. They had a jar in which he put a small piece of gold as saving. After some time, he wanted to see the world, so he sold his shop. But there was one problem, the jar of gold. He could not take it with him on the journey. Okay, scene 2 में अब क्या बताया हुआ है कि अली है, वो बगदाद के शहर में उसकी एक केक शॉप है और उसके पास एक जार है जिसमें वो अपनी सेविंग के लिए गोल्ड पीसेस को सेव करता जा रहा है. एक दिन उसने इरादा किया कि वो दुनिया की सैर करने जाएगा. ही वॉन्टेड टू सी द वर्ल्ड, सो ही सोल्ड हिज शॉप. उसने क्या किया, अपनी शॉप को सेल आउट कर दिया. बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम. ऑफ कोर्स द जार फिल्ड विद गोल्ड कैन नॉट बी कैरिड विद हिम थ्रू आउट द वर्ल्ड. अब वो ये तो नहीं होगा कि वो जार अपना जो उसकी सारी सेविंग है उसको लेके वो पूरी दुनिया की सैर करेगा. इसलिए अब उसको प्रॉब्लम था कि अब वो इस गोल्ड के जार को कहाँ रखे. ही कुड नॉट टेक इट विद हिम ऑन द जर्नी. Scene 3. Ali bought some olives and put them in the jar on the top of the gold. Then he took it to his friend Hussein. Ali asked Hussein to keep the jar of olives with him until Ali returned. Okay, यहाँ पे अली ने एक ट्रिक प्ले की है. उसने क्या किया है, उसने अपने गोल्ड के फिल्ड जार में सबसे ऊपर उसने कुछ ऑलिव्स रख दिए और अपने फ्रेंड हुसैन से कहा है कि ये मेरा ऑलिव्स का जार है और जब तक मैं वापस नहीं आता इसे तुम सेफ़ रखो अपने पास. अब अली को नहीं पता कि इस जार में ऑलिव्स नहीं बल्कि गोल्ड हैं, क्योंकि हुसैन ने ऊपर उसके ऑलिव्स रख दिए हैं. हुसैन ने ऐसा क्यों किया? बिकॉज ऑफ कोर्स वो जानता था कि अली को अगर ये पता चल गया कि इसमें गोल्ड है तो हो सकता है अली डिसऑनेस्टी से काम ले और उसका गोल्ड के साथ कुछ ऐसा कर दे और बाद में उसे ना दे. सो I hope you are enjoying the story.
Let's come to the scene 4. Hussein's wife wanted some olives. Who is Hussein here? हुसैन वो वाला फ्रेंड है जिसको अली अपना गोल्ड का जार दे के गया है. उसकी वाइफ को कुछ ऑलिव्स की ज़रूरत हुई. बट द शॉप इन देयर स्ट्रीट वॉज शट, सो हुसैन ओपनड अलीज जार. द ऑलिव्स वर वेरी ओल्ड एंड ड्राई. He put his hand down into the jar and pulled out not an olive but a piece of gold. Hussein took all the gold and next day filled the jar with new olives. हुसैन ने क्या किया? हुसैन की मिसेस को ऑलिव्स की ज़रूरत थी. हुसैन ने जार में अपना हाथ डाला. उसने सोचा कि अली के जार में से मैं ऑलिव्स निकाल के अपनी मिसेस को दे देता हूँ. जब उसने उसमें हाथ डाला और निकाला तो उसे पता ये चला कि उसमें ऑलिव्स बहुत पुराने और ड्राई हो चुके हैं, बहुत छोटे साइज़ में हो चुके हैं, और उसके हाथ में क्या आ गया? गोल्ड के पीसेस. अब उसे पता चल गया कि इस जार में बहुत सारा गोल्ड है. वो नेक्स्ट डे मार्केट गया और सारा गोल्ड सेल आउट कर दिया और जार को ऑलिव्स के साथ फिल कर दिया. अब वो जो उसमें अली ने जो ऑलिव्स रखे थे वो तो अब पुराने हो चुके थे, लेकिन हुसैन ने जो ऑलिव्स रखे हैं वो तो न्यू हैं. इससे क्या होगा? वो अपने ही बनाए हुए प्लॉट में ट्रैप हो जाएगा खुद ही. Come to scene 5. Ali came back to Baghdad after 7 years. He went to Hussein and asked for his jar. Hussein gave him the jar. Ali put his hand in the jar and found olives only. Ali asked Hussein about the gold. I know nothing about any gold, answered Hussein. अब क्या हुआ अली के साथ? अली जब 7 ईयर्स के बाद बगदाद में वापस आया, उसने हुसैन से अपने जार के बारे में पूछा. हुसैन ने उसे जार दे दिया. अब जार में क्या है? यस, ऑलिव्स. और अली ने जार में क्या दिया था? गोल्ड पीसेस. अब अली ने जब अपना जार देखा तो वो तो ऑलिव्स के साथ भरा हुआ था और उसमें कोई गोल्ड नहीं था. और जब उसने हुसैन से पूछा कि गोल्ड कहाँ है, तो हुसैन ने कहा, कौन सा गोल्ड? तुमने तो मुझे ऑलिव्स का जार दिया था. ऑफ कोर्स अली ने हुसैन को यही कहा था कि इस जार में ऑलिव्स हैं. तो अब हुसैन डिसऑनेस्टी से काम लेते हुए उसने कह दिया कि तुमने तो मुझे जार जो दिया था उसमें तो सिर्फ ऑलिव्स थे, मैं तो किसी गोल्ड के बारे में नहीं जानता. नाउ कम टू सीन 6. Ali and Hussein went to judge. He asked Ali, did you tell anybody about the gold in the jar? Ali shook his head. Dear students, here shook means to move your head in the gesture of no. जिस तरह हम no कहने के लिए head को move करते हैं, इसे कहते हैं shook. Ali shook his head. Ali said the judge, you are a busy man. You don't remember things well. Nobody saw the gold. So perhaps there was no gold in the jar. Perhaps means maybe. This word is used to show the possibility. Okay, अब क्या हुआ? वो दोनों अली और हुसैन जज के पास गए. जज ने अली से पूछा कि आपने गोल्ड के बारे में किसी को बताया था? कोई आपकी गोल्ड के बारे में जानता है? अब अली के उस गोल्ड के बारे में तो कोई भी नहीं जानता है, बिकॉज वो उसकी सीक्रेट सेविंग थी. तो जज ने ये बताया कि आप बहुत बिजी पर्सन हैं, आपको पता नहीं चला, आपने कहीं और अपना गोल्ड रखा होगा. सो आप जाके कहीं और ढूंढें, आपके जार में तो कोई गोल्ड नहीं था जो आपने हुसैन को दिया. बट रियलिटी क्या थी कि हुसैन को पता चल गया था कि इस जार में गोल्ड है और उसने सारा गोल्ड सेल आउट कर दिया था. सीन 7. नाउ एवरीबॉडी इन बगदाद न्यू अबाउट द जार ऑफ ऑलिव्स. ऑफ कोर्स जब किसी कंट्री में कोई डिफरेंट टाइप की सिचुएशन आती है तो सब लोग उस बारे में जान जाते हैं. सब लोग एक दूसरे को उस बारे में स्टोरीज सुनाना शुरू कर देते हैं. अली और हुसैन वाला जो ये इंसिडेंट था ये भी पूरे बगदाद में फैल गया. One day the Sultan said to his vizier, Sultan means the king of that time, let's walk in the street and listen to people. What are they saying about the case? The Sultan and his vizier saw some children playing a game. One boy was Ali and one was Hussein. Another boy was playing the judge. The Sultan listened to the boy judge and liked his questions. Okay. What happens in this scene? इस सीन में ये होता है कि उस टाइम का जो किंग था उसने अपने वज़ीर से कहा कि लेट्स वॉक इनटू द स्ट्रीट, और ये सुनते हैं लोगों को कि लोग इस इंसिडेंट के बारे में क्या स्टोरीज एक दूसरे को सुनाते हैं और लोगों के क्या व्यूज़ हैं एक्चुअली इस बारे में. अच्छा, जो इस तरह किंग्स होते थे वो जब अपने कंट्री में शाम के टाइम या किसी भी टाइम वॉक करते थे
ये जानने के लिए कि लोग क्या बातें करते हैं, लोगों के दरमियान क्या इंसिडेंट्स डिस्कस हो रहे हैं और लोगों के क्या व्यूज़ हैं। तो वो उस टाइम पे अपने किंग वाले कॉस्ट्यूम में नहीं होते थे, वो ऐसे कॉस्ट्यूम में फिरते थे कि किसी को पता ना चले कि ये किंग है, क्योंकि उन्हें लोगों की बातें सुनना होती थी। अब वो इस तरह से एक स्ट्रीट में फिर रहे थे, तो वहाँ पे कुछ चिल्ड्रन कोई गेम खेल रहे थे, और गेम में वो क्या खेल रहे थे, वो अली और हुसैन बन के खेल रहे थे। एक बॉय अली बना हुआ था, एक हुसैन बना हुआ था और एक जज बना हुआ था। जो बॉय जज बना हुआ था वो हुसैन और अली से क्वेश्चंस कर रहा था। किंग ने जब उसके क्वेश्चन सुने तो किंग को उसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे, और किंग को ये लगा कि यही वाले एग्जैक्टली क्वेश्चंस अगर एक्चुअल वाला जज पूछता तो वहाँ पे ट्रूथ जो था वो रिवील हो जाता। सो 8th scene. The next day Sultan called Ali, Hussein and the boy judge. Who is the boy judge? This is the child who was playing in the street and was acting like the judge. ये वही वाला boy है. The jar of judged Ali and Hussein, the jar of olives and an olive seller. किस किस को उन्होंने बुला लिया? सुल्तान ने हुसैन को, अली को, बॉय जज को और ऑलिव्स का जार बुलवा लिया और एक ऑलिव सेलर बुला लिया। कम बॉय, द सुल्तान सेड, yesterday you judged Ali and Hussein in play. Now you will really do it. The boy was very afraid, but he said, bring me the jar of olives. अब वो जो बच्चों में खेलने वाला वो एक बॉय जज बना हुआ था, उसको सुल्तान ने क्या कहा है कि आप एक्चुअल में वही वाले क्वेश्चंस करें जो आपने कल प्ले में किए थे। अब वो बॉय थोड़ा सा हेजिटेट हुआ, बट ही स्टार्टेड डूइंग द सेम। उसने क्या कहा? उसने कहा ब्रिंग मी द जार ऑफ ऑलिव्स। द बॉय पुल्ड आउट सम ऑलिव्स। पुल आउट मीन्स टू ड्रॉ आउट। बॉय ने उस ऑलिव्स के जार में से कुछ ऑलिव्स निकाले एंड एट देम, और उन्हें खा लिया। देन द बॉय गेव सम ऑलिव्स टू द ऑलिव सेलर। अब उसने क्या किया? वो जो ऑलिव्स थे वो ऑलिव सेलर को दिए। ट्राई दीज ऑलिव्स, ही सेड, दे आर 7 years old बट दे आर वेरी गुड। अब उसने कैसे ये बताया कि अली ने ऑलिव्स चेंज कर दिए हैं। उसने ऐसे बताया कि अगर ये 7 years old होते तो ये तो बहुत ड्राई हो चुके होते, लेकिन ये तो फ्रेश हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये 7 years old नहीं हैं, बल्कि ये बाद में फिल किए गए हैं। तो इससे क्या हुआ? अली की चोरी पकड़ी गई। द ऑलिव सेलर स्क्रीम्ड। स्क्रीम्ड मीन लाफ्ड हार्टिली, बहुत ज़ोर से, चीख की तरह से हंसना। दीज ऑलिव्स आरंट 7 years old। अब उसने चीख के कहा है कि यस, ये तो ऑलिव 7 years old नहीं हैं। आफ्टर 3 years ऑलिव्स लॉसेस इट्स कलर, के जो ऑलिव्स होते हैं उनका कलर फेंट हो जाता है। दे आर फ्रेश ऑलिव्स। हुसैन्स फेस टर्न्ड वाइट। टर्न्ड वाइट मीन्स कि वो अब खौफजदा हो गया कि मेरी तो चोरी पकड़ी गई है। ही एडमिटेड दैट ही टुक द गोल्ड। अब उसने बता दिया, एडमिटेड मीन्स ही एक्सेप्टेड हिज क्राइम, that he took the gold. Ali had his gold again. The boy stayed with the sultan and later became a famous judge. अब वो जो चाइल्ड था, बॉय who was playing as a judge, वो सुल्तान ने उसको अपने पास रख लिया, और जब वो बड़ा हुआ तो बड़ा होकर वो बहुत फेमस जज बन गया। Did you enjoy the story? I enjoyed really much. Dear students, in the end of this story, in the white box, it is described that what are tales and what are tales from Arabian Nights, and it is said that Tales from the Arabian Nights is a collection of stories from Arabia and India told by Princess Scheherazade. The king has threatened to put her to death. I already have told you that king कहता था कि मैं तुम्हें मार दूंगा, और फिर क्या होता था? But every night she tells him a new story. Every morning the king agrees to let her live for just one more day if she tells him another story, कि अगर तुम मुझे आज एक स्टोरी सुनाओगे तो आज मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूँगा। और वो डेली उसे एक न्यू स्टोरी सुनाती थी, और डेली किंग उसे कहता था कि आज फिर तुम मुझे स्टोरी सुनाओ, अदरवाइज़ मैं तुम्हें कत्ल कर दूँगा। ओके, थ्रेटन मीन्स फ्राइटन, किसी को धमकी देना, वार्न करना किसी को। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन दिस मीनिंग्स। If you have done the meanings, then let's discuss our homework. Dear students, your homework is to read the lesson again. First of all, आपको ये चाहिए कि आप पहले ये lesson again सुने, पूरा lecture again सुने, and then read it out with the correct pronunciation. Then learn the meanings of difficult words that I have given you in your classwork notebook. So this is your homework. Get your homework done by the next lesson.
and good luck dear students. Allah Hafiz.